in the projection of solids, first of all is the solid. So solid, you must be knowing, you are studying from the very प्राइमरी क्लासेस से आप स्टडी करते जा रहे हो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड की शेप्स भी आप पढ़ते जा रहे हो, कोन्स आपने पढ़े हुए हैं, क्यूब पढ़ा है आपने, ठीक है जी। टेट्राहेड्रन भी आपने देखा होगा प्लस 1 प्लस 2 में या 9 10th में भी आपने देखा होगा टेट्राहेड्रन क्या होती है, व्हाट इज द शेप ऑफ टेट्राहेड्रन। क्यूब होता है, देयर इज अ पैरेललोपिपेड, अदर रेगुलर सॉलिड भी होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं सॉलिड। उसके बाद जो द थिंग्स अराउंड यू जो भी सारी है, these are almost 3D objects। तो 3D solid क्या है, solid is an entity, is a 3-dimensional object। और क्या कंडीशन होगी इसके साथ, solid is a 3D object, 3-dimensional object having length, breadth and length, breadth and height। Any 3D object having length, breadth and height, that is called a solid। So any object, any surrounding in any object in your surroundings having 3-dimensional with length, breadth and height is called a solid। So next is the type of solids। Solids and classification start करने से पहले we are doing different types of solids। Right solid, there are two types of solids, right solid and oblique solid। Anybody of you must be knowing about the right solid and the oblique solid। थोड़ा सा इनको मैं एक्सप्लेन करने से पहले सॉलिड, oblique solid या right solid, कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और वी आर टेकिंग ए प्रिज्म या हम एक सिलेंडर ही लेते हैं, ठीक है जी। इसलिए सिंपल सॉलिड, ये मैंने इसकी सेंटर लाइन बनाई है, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड एक्सिस। these are called एंड फेसेस। एंड फेसेस बोल देते हैं इसको हम, बेस भी बोल देते हैं, बेसिस बोल देते हैं, ठीक है। जब टू है तो इस करके हम इसको बेसिस बोल देते हैं। these both are the end faces, this is the axis। और ये वाला जो इसका जो है, जो इसका सरफेस बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। जब ये पर्टिकुलर हमारा एक सिलेंडर आ गया, सिलेंडर का केस लेके हम और केस भी ले सकते हैं विच हैव सम एक्सिस एंड फेस। So just I want to state the difference between the right solid and the oblique solid। तो डिफरेंस क्या है, पहले हमने दो चीजें डिफाइन की हैं, एक्सिस और एंड फेसेस और बेसिस। सो इन द राइट सॉलिड जो आपकी एक्सिस है, एक्सिस इज perpendicular to the base or end face। In the right solid, axis is perpendicular to the base or the end face। ये वाली जो आपकी एक्सिस है, this axis it is perpendicular to this base, it is like this, ठीक है। जैसे हम this is also a cylinder, जो इसकी एक्सिस है सेंटर वाली जो इसकी एक्सिस पास हो रही है, this axis is perpendicular to this base, then such type of solid is called the right solid। Next we come to the oblique solid, when axis is
not perpendicular or angle is other than 90 degree. Such type of solid is called the oblique solid. ये आपका solid कैसा बनेगा? इस solid में, और this is the base. ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल इज नॉट 90 डिग्री. दिस इज सम acute angle. In this case, this angle is 90 degree. So such type of solid is called the oblique solid. This is called right solid. So this is the main difference between the right solid and the oblique solid. हाँ, कोई बात नहीं बेटा, माइनर आपका कर लेंगे शेड्यूल. नाउ यू कम टू द स्टडी. जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए आप. या पहले प्रश्न में पढ़ते रहे ये चीजें. जरूरी नहीं कि ये ड्राइंग में यूज होती है आपकी, यूज इन द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. आप जैसे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर में ये कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह में भी काफी यूज होती है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस द राइट सॉलिड एंड द oblique solid. The next is the other type of solid is the, ये आपका एक डिफरेंस आ गया आपका between the right solid and the oblique solid. Next is the regular solid or regular solid. Other type is irregular solid. So in the regular solid, in this regular solid, edges of the edges क्या कहते हैं हम जहाँ इसको sides of the base oblique and faces are equal. Regular solid में क्या होगा? Regular solid में, if we take the example of a prism, ठीक है, प्रिज्म बनाया हमने. तो प्रिज्म, so this prism is the square prism. Square prism. तो square prism आपका तभी square prism हो सकता है if all the sides are equal. All these sides are of the base are equal. So such type of solid is called the regular solid. ठीक है, इसी हिसाब से स्क्वायर की जगह एक बार रेक्टेंगुलर प्रिज्म, rectangular, then it is not a regular solid. It is not a regular solid. ठीक है, और हम ले सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हम ले सकते हैं, हेक्सागोनल हम ले सकते हैं. मींस हेक्सागोनल मींस इट्स बेस इज हेक्सागोनल. तो रेगुलर का मीन क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑफ द बेस आर इक्वल. Such type of solid is called the regular solid. If these sides are not equal, then it is called a irregular solid. हाँ जी, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, रेगुलर सॉलिड में और इरेगुलर सॉलिड में. बेटा किसी को डाउट इसमें regarding of this type of solids? First we have done the right solid and the weak solid, then we have done the
रेगुलर सॉलिड एंड द इरेगुलर सॉलिड। मेनली इसमें जो रेगुलर सॉलिड होगा आपका, रेगुलर सॉलिड में जो आपका जो बेस होगा, बेस की जो साइड्स होंगी, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। इफ इट इज अ ट्रायंगल देन इट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। If it is a hexagon, then all the sides will be equal. If it is a pentagon, then all the sides will be pentagon की जैसे हम एंगल बनाते थे, ना एंगल होता था पेंटागन में। चीजें सारी सेम बेटा वही यूज होनी है। हाँ जी, पेंटागन में एंगल कितना होता है? 10। पेंटागन में बेटा एंगल कितना होगा? भूल के क्या? 108 डिग्री। पेंटागन में जो आपका एंगल होता है 108 डिग्री, वो हम 108 डिग्री एंगल करते हैं, तो वो हम रेगुलर सॉलिड की बात कर रहे हैं। द सॉलिड विल बी रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन भी हम ले सकते हैं, जैसे हम पेंटागन लेते हैं, पेंटागन भी आपका रेगुलर लेते हैं। रेगुलर का मतलब ये है, और ये एंगल हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू डिफाइन द फिगर। फिगर में सारे एंगल हमारे को बताने पड़ेंगे, सारी मेरे को साइड जो भी है आपको डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव टू डिस्क्राइब दैट। अगर रेगुलर हमने बोल दिया, सिर्फ हमारे को साइड बतानी पड़ेगी। साइड इज 20 mm। 20 mm मींस ऑल द साइड विल बी इक्वल। तो वो आपका रेगुलर की बात ही करते हैं हम, यही आपका सेम आपका रेगुलर सॉलिड। ये हाइट डिफरेंस हो सकती है बेटा, हाइट इसकी डिफरेंट हो सकती है। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी वांट टू ड्रॉ ए पेंटागोनल प्रिज्म having base, side of the base 20 mm and height 50 mm। जिसकी हाइट है, हाइट में भी डिफरेंट, ठीक है, हाइट डिफरेंट हो सकती है उसकी। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन दीस टू फिगर्स। लेकिन साइड के लिए हमारे को पेंटागन का दिया हुआ है, हमने कह दिया कि पेंटागन प्रिज्म 20 mm साइड, साइड ऑफ बेस इज 20 mm। तो 20 mm है, तो इट मींस इट इज ए रेगुलर सॉलिड, इट इज नॉट इरेगुलर सॉलिड। Next we come to the classification of solids. So next is the classification of solids. In the classification, mainly there are two types of solids: polyhedra and solids of revolution. There are two types of solids: polyhedra and solids of revolution. In the polyhedra, there are three types of solids: regular polyhedra, prisms, and pyramids.
रेगुलर पॉलीहेड्रा में आपके रेगुलर प्रिज्म्स एंड pyramids. And in the solids of revolution, we have the cylinder and a cone. The solids of revolution, they are the cylinder and the cone. Now we come to the polyhedra and its description. Polyhedra आपका कौन सा होता है? Polyhedra is the first we take the polyhedra having number of bases number of plane figures called faces, number of plane figures called faces, joined the joined by the straight lines called पॉलीहेड्रा की जब जनरल की मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी है polyhedra what is polyhedra it is an entity in which there are a number of plane figures number of plane figures it may be a triangle it may be a sphere it may be a pentagon it may be a hexagon ठीक है दिस इज अबाउट द प्लेन फिगर इनमें से कोई भी प्लेन फिगर हो सकते हैं और इसका नंबर 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकता है एंड दीज आर जॉइंट एट द स्ट्रेट लाइन इनको हमने जॉइन किया हुआ है एट द स्ट्रेट लाइंस such type of edges are such type of entities are called the polyhedra इस टाइप से जो आपके पास फिगर जो जनरेट होगा ऑब्जेक्ट आपके पास जो जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रा ठीक है अब पॉलीहेड्रा के अंदर फर्स्ट कैटेगरी था रेगुलर पॉलीहेड्रा में आपका इसमें आपका नंबर ऑफ रेगुलर प्लेन फिगर्स joined at the joined by the straight lines called edges और ये वाली जो आपकी edges होगी edges कितनी होगी equal to the number of sides of the number of sides of the plane figure इसमें जो फर्स्ट आपकी एग्जांपल बनेगी फर्स्ट एग्जांपल लिखिएगा tetrahedron is formed by joining the number of triangles ठीक है टेट्राहेड्रन में कितने ट्रायंगल ज्वाइन करते हैं हम
इक्विलेटरली बनी। दिस इज द टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में देयर विल बी one triangle, other triangle, second, third, and एक आपकी पीछे वाली आ गई। तो टेट्रा मीन्स 4। तो टेट्रा के बाद नेक्स्ट देयर विल बी हेक्साहेड्रन। In tetrahedron there will be 4 heads। ये जो है these are called the heads or the vertices। These are called the vertices। Single के लिए हम we use the vertex। Okay, if there are number of vertex then it's called a vertex। In tetrahedron there are 4 vertices and it is formed by joining the triangles। Next, if we join the spheres, then we get the hexahedron। और इसके जो है फेसेस, इसके 4 फेसेस। देयर आर 4 फेसेस। ठीक है, फेसेस मैंने गिनवा के गिनी थी आपके सामने। देयर आर 4 ट्रायंगल्स 1 2 3 एंड 4। In the hexahedron there are 6 faces। 6 faces it is formed by joining the spheres। What is the other name of the hexahedron? हाँ जी, हेक्साहेड्रन में देखा है कभी हेक्साहेड्रन आपने? सिंपल नेम ऑफ द हेक्साहेड्रन इज द क्यूब। तो हेक्साहेड्रन इज द, इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इज द क्यूब। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फिगर बनेगा दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रन। उसके बाद आइसोपाहेड्रन। In the octahedron there will be 8 faces। In the isopohedron there will be, I think, 12 faces। 12 faces। इसको डोडेका भी आता है, 8 के बीच में डोडेकाहेड्रन is having 10 faces। ठीक है जी, so these are the different figures। All these figures are called the irregular polyhedra। इसमें जो आप प्रोजेक्शंस आप ड्रॉ करते हो, जनरली at the most we draw the projection of the cube। इसके बिना और कोई भी पैटर्न तो यूज नहीं करती, क्योंकि इसको ड्रॉ करना इट्स नॉट सो इजी। और वैसे जो हमारी पेंसिल्स हैं वो आपकी इसके कंपैरेटिवली जो आपकी सिर्फ क्यूब आपका यूज होता है, जो कॉमन फिगर भी यूज होता है, these figures are not commonly used। इसलिए हम इसकी प्रोजेक्शंस वगैरह भी कम ड्रॉ करते हैं। So next type of figures are the prisms।
The prism, there are equal and similar faces. They vary to equal and similar faces. पहले आपको बताता हूँ इसके जो सिंगुलर फेसिस है द कॉल्ड द फेसिस joined by the rectangles or parallelograms. Prism, it has two equal and similar faces. Okay, there are two similar faces. For example, we have the ये मैंने पेंटागन लिया हुआ है, एक पेंटागन मैंने इस साइड पे लिया, दूसरा पेंटागन मैंने एक साइड पे लिया, and all these are called faces. ठीक है, इन इस faces की बात करें, these are the faces, one on this side, other on that side, and these are joined by the और इनकी जो edges है जो it has a 5 edges, तो 5 rectangles से हमने इनको join कर दिया to both the faces, दोनों faces को हमने रेक्टेंगल से ज्वाइन कर दिए। कितने रेक्टेंगल चाहिए आपको? देयर विल बी 5। जितनी इसकी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतनी आपकी रेक्टेंगल रिक्वायर्ड होगी। उन रेक्टेंगल से आपको आपकी ज्वाइन करके तो आपके पास एंटी जो जनरेट होगी, तो फिगर आपके पास ऑब्जेक्ट आपको जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड ए प्रिज्म। ठीक है जी। अगर हम इनको रेक्टेंगल से ज्वाइन कर रहे हैं देन वी गेट द राइट सॉल्व, right prism, right triangular prism. If these are joined by the parallelograms, then that will be the figure आपके पास क्लियर होगी, that will be the oblique solid. ठीक है, एग्जांपल suppose we take a square prism, the square prism. These are called the bases. ये वाले जो इसके रेक्टेंगुलर फेस है इसे कौन सा रेक्टेंगुलर फेसेस, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोल देते हैं साइड ऑफ द बेस, और जो सेंटर से आपके पास करती है सेंटर से जो एक्सिस आपकी पास करती है, एक्सिस के क्या लेते हैं हम, वी हैव टेकन द सेंटर ऑफ दिस बेस, सेंटर ऑफ द अपर बेस, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, वी गेट द एक्सिस।
and these are also the edges. इसको हम बोलेंगे, इसको भी हम एज बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम एज ऑफ द बेस बोलेंगे. These are called the edges. It is called the edge of the base, the side of the base. ठीक है. तो ये वाली अगर आपकी रेक्टेंगुलर फिगर्स हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन्स आपके रेक्टेंगल है, देन वी गेट द राइट सॉलिड. अगर ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक आपको कब बनेगा? इफ वी आर द एक ऑब्लिक सॉलिड मैंने आपको बना के भी दिखाया था, इस टाइप का सॉलिड बनेगा अच्छा वो. then we get the oblique solid. इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस विल बी at an acute angle to the base. Okay, so this is the prism. Prism में there may be triangular prism, square prism, rectangular भी हो सकता है. प्रिज्म आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज द पेंटागोनल प्रिज्म, देन नेक्स्ट इज द हेक्सागोनल प्रिज्म एंड सो ऑन. ठीक है. आगे हेप्टागन भी ले सकते हैं हम, ऑक्टाहेड्रन भी ले सकते हैं, लेकिन बट वी आर जस्ट लिमिटेड टू दिस ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल या हेक्सागोनल. बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आवाज कोई बात नहीं, थोड़ा सा आवाज वाला इतना है नहीं बेटा. ये ड्राइंग का सब्जेक्ट है, आपको ये बताइए कि नहीं समझ में आ रहा तो बताइए मेरे को. माइक सिंह, आप अपना ही बेटा एक बार चेक करो, मेरे पास स्पीच चल रहा है, वीडियो कुछ नहीं है. ठीक है. तो दिस इज आवर प्रिज्म. द नेक्स्ट इज द पिरामिड. पिरामिड में देयर विल बी ए सिंगल base joined with the triangular faces. कितने हैं ये faces? Equal to the number of sides of the base. It has a single base joined with the triangular faces equal to the number of sides of the base. Joint meeting at a point called apex or apex बोल देते हैं इसको हम vertex. देख लीजिए बेटा इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं. मैं आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, मैं डेफिनेशन के लिए मैं रटिंग का डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ. देयर इज अ सिंगल बेस. सिंगल बेस जो आपका होगा उसमें आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है. ठीक है. उसके बाद यहाँ से फ्रॉम ईच साइड वी हैव टेकन द ट्रायंगुलर, वी हैव टेकन द ट्रायंगुलर फेसिंग. ठीक है जी. पिरामिड्स की एग्जांपल है आपके पास कोई ध्यान में? आपके 7 बंडल्स में भी आता है पिरामिड्स भी है. तो पिरामिड सिंपली वही शेप आपकी पिरामिड. इट हैज सिंगल बेस. उसके बाद
taken the triangular faces, और ये triangular faces आपको कितने होंगे? If we have taken the base as a triangle, so there will be three triangular faces. Three triangular faces, ठीक है? And all these three faces are meeting at a single point. So जहाँ जिस point पे मिलते हैं, that point is called the apex of the vertex. जो height होती है उसकी height कहाँ से लेते हैं? height तो लेते हैं from the between the apex and center of the base. height भी बोल देते हैं इसको हम altitude भी बोलते हैं. height of altitude, it is the distance between the apex and the center of the base. तो मेरे को ये बता सकता है कि अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड ले रहे हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड वर्सेस टेट्राहेड्रन, बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या होगा? ट्रायंगुलर पिरामिड में और टेट्राहेड्रन में क्या डिफरेंस होगा? एनी स्टूडेंट प्लीज टेल मी द डिफरेंस. ट्रायंगुलर पिरामिड में और टेट्राहेड्रन में कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? सेम ही है, नो डिफरेंस. टेट्राहेड्रन इज क्लोजर प्लेट. देखिए बेटा टेट्राहेड्रन के जो है, टेट्राहेड्रन में we have taken four triangles, four equilateral triangles, चार equilateral triangle लिए हैं, उनको आपने ज्वाइन किया है to become the to form the tetrahedron. हाँ जी हाँ, सारे ट्रायंगल सेम होंगे, लेकिन पिरामिड में हमारे को जरूरी नहीं कि ये होंगे एकदम. पिरामिड में जो आपकी ट्रायंगुलर फेसेस की हम बात करें, ट्रायंगुलर फेसेस आपकी इस टाइप की ट्रायंगुलर फेसेस. दिस इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल. लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रन में जो आपकी हाइट होगी है कोई फर्क नहीं है. इसमें वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रायंगुलर पिरामिड एंड द टेट्राहेड्रन. आपका एक टेट्राहेड्रन में भी कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड. ठीक है, लेकिन ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन नहीं बोलते. ट्रायंगुलर हेड्रन को सॉरी ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन बनाने के लिए सम स्पेसिफिक क्वालिटीज. क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्योंकि चारों ट्रायंगल जो है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए. देन वी गेट द टेट्रा. So this is all about the prism, pyramid. So first we have done the polyhedra. Polyhedra में there was three type of polyhedra: regular polyhedra, prisms and pyramids. पिरामिड भी आपके वही आपका ट्रायंगल से भी स्टार्ट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल में भी आल्सो देयर, पेंटागन एंड हेक्सागन. सारी ये सेम जो प्रिज्म में हो सकती थी वही सेम बिकॉज़ पिरामिड में वी कैन. तो नेक्स्ट आर द सॉलिड द प्रिपरेशन.
the solids of revolution सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन में we rotate a plane figure by 360 degrees. Suppose we rotate a rectangle. In the rectangle, we rotate this rectangle by 360 डिग्री. 360 का हमने रोटेट कर दिया, पूरा सर्कल इसको दे दिया. जो आपके पास जो सरफेस आपके पास जनरेट होता है, that surface is the surface of revolution. Surface of revolution of इस केस में आपके पास फिगर जो आपके पास बनेगी, that figure will be the सिलेंडर आपके पास फॉर्म होता है. दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक टू बेसिक इज कॉल्ड द ठीक है. इसके जो एज है, सिर्फ एक बेस का आपका एज बनेगा फॉर बोथ द बेसिस देयर आर द एजेस, और इसमें कोई भी आपका एज नहीं होता. इट इज जस्ट द आउटपुट बाउंड्री ऑफ द सिलेंडर टू शो द सिलेंडर. ऐसे इस टाइप से हमने एक रेक्टेंगल को रोटेट किया, देन वी गेट द सिलेंडर. इफ वी रोटेट a right angle triangle about its perpendicular side, then we get the cone. It is called the axis. Point is called the apex. This ठीक है. स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन में एक फिगर हमारे पास और बन सकता है, दैट इज द स्फीयर. स्फीयर जो हमारा फॉर्म होता है, स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग ए सर्कल. सर्कुलर डिस्क, सर्कल को हम रोटेट करें, इट्स डायमीटर, देन वी गेट द जो आपके पास सरफेस जो जनरेट होता है, दैट इज द सरफेस ऑफ ए स्फीयर. So this is about the solids of revolution. तो एक इसके साथ हम और चीजें यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए फ्रस्टम और truncated of a solid. Frustum अलग है, truncated is called a frustum of a solid and truncated of a solid. There are two definitions. Frustum क्या है? When if we cut a cone or pyramid, what we have to do? We have to cut a cone or a pyramid. कैसे कट करना हमें? Parallel to its
is the remaining portion is called in frustum. In the frustum means we have a pole. We have cut this pole from this and we have removed this portion. जो आपका remaining portion जो बचेगा, this portion, this is called a frustum. इसके लिए कंडीशन क्या है फ्रस्टम के लिए? we should be having only cone or a pyramid. pyramid में भी हम okay, if its top portion has been removed and it is also called a frustum. ठीक है नहीं? तो फ्रस्टम के लिए we have condition also either we have a cone or we have to be having a pyramid. Now next about the truncated of a solid. Truncated of the solid, if any solid cut not parallel to its base is called truncated. ठीक है, इसमें हम प्रिज्म की लिस्ट क्या है? प्रिज्म में हमारे पास है, so this is the prism. It will be cut like this. Then such solid which is formed is called truncated of the solid. फ्रस्टम में कंडीशन है हमारे पास देयर शुड बी ए कोन और ए पिरामिड. इसमें हम किसी भी सॉलिड एनी सॉलिड कट बाय cut from its cut which is not cut its base, then remaining portion जो है दोनों portion आपके बनते हैं is called truncated of the solid. ठीक है, इसमें आपका प्रिज्म भी हो सकता है, इसमें आपका पिरामिड भी ले सकते हैं. यही बात जैसे पिरामिड है आपके पास, इसको हम ऐसे काटें तो हमारे पास पोर्शन बचेगा वो आपका डिस्टॉर्टेड पोर्शन बचेगा. तो उस केस में कॉल्ड है ट्रंकेटेड सॉलिड. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सॉलिड्स की डेफिनेशंस. क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, क्वेश्चन आपके वाइवा के क्वेश्चन इसमें काफी बन जाते हैं. अगर हम लाइंस की बात करेंगे, लाइंस में वाइवा के क्वेश्चन इतने नहीं बनते, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपके काफी बन सकते हैं. Okay, so next we come to the problems related to the solids.
questions. So first question is in chat box. The question is a pentagonal prism edge of base 25 mm, 48 mm long, resting in HP on its base, having one of its base edges perpendicular to the VP. Draw the projections. So there is a pentagonal prism. There is a pentagonal prism edge of base 25 mm, 48 mm long, resting in HP on its base, having one of its base edges perpendicular to the VP. तो सिर्फ बेस की मैं बात कर रहा हूँ. बेस, दिस इज द बेस, पेंटागोनल बेस. इसकी साइड जो आपको गिवन है, साइड इज 25 mm और इसकी लेंथ कितनी है? इट इज 45 mm, सॉरी 48 mm, and it is resting on its base on HP. So it is resting on HP. It is resting like this. तो ये वाला जो आपका जो दृश्य है, अगर इसका पेंटागोनल बेस हम एज्यूम कर लें, then it is resting like this on the HP. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? One of the sides and its base edges, one of its base edges perpendicular to the VP. Now this he has told about the position of this base. ये वाला जो base है, इसकी position कैसे है? These are its base edges. It has 5 base edges. ठीक है. These are the edges of the base edges. Base edges means the edges of the base. So one of the base edges perpendicular to the VP. तो ये इस टाइप से होने के बजाय इसको, ये दिख रहा है यहाँ से किसी का है बेटा कि नहीं? यहाँ से इस टाइप की बजाय ये आपका इस टाइप से पड़ा हुआ, लाइक दिस. ठीक है. और कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है. तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन. हाँ जी. इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेंगे? पिरामिड है आपके पास, सॉरी तो प्रिज्म है आपके पास. प्रिज्म, if you see it from the top, you will see the plane figure जो इसका बेस है, that will be quite visible to you. अगर वो पेंटागन है तो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन जो भी आपको है शेप उसकी, that exact shape will be visible to you. तो टॉप व्यू इसका कैसे बनेगा? टॉप व्यू will be like this, इस टाइप से. ये आपका 25 mm लेना है आपने. और इसमें समझ लगा कि now this edge is perpendicular to the VP. इसकी जो हमने जो बेस बनाया है, बेस का this edge is perpendicular to the VP. in the top view ये आपको visible रहेगी. You may name these A, B, C, D and
then after that the projection in the front view. ये इसका बेस बन गया। हाइट कितनी आपकी 48 mm गिवन है, 48 mm आप इसमें से कट कर दोगे 40 पॉइंट्स आ रहा है, these points A dash, B dash, C dash, E dash, this point is ये वाले ऊपर जो टॉप वाले पॉइंट्स हैं ये इस फेस के भी आपको सेम लिख सकते हो, A dash, B dash, C dash, E dash, अब इसमें से कौन सी अपनी कंटिन्यू क्लिक करनी है, ये लाइंस में इसके ऊपर द्वारा एक बार फिर मार्कर आपका चलना। ठीक है, ठीक है, ये आपका दिस विल बी थिक लाइन, दिस विल बी थिक लाइन, और ये वाला दिस एज विल बी आल्सो विजिबल टू यू, दिस विल बी आल्सो थिक। इसकी डायमेंशनिंग करनी है, डायमेंशनिंग आपको it is 25 mm. So this completes the question. आपकी किसी की भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपको, कोई डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, you may ask. ठीक है बेटा, next we take the next question. And the next question देखिए बेटा, a triangular prism size of base 30 mm, axis 55 mm long, lying on one of its rectangular faces in HP with its axis parallel to the VP. Draw its projections. And ये और मुझे देखिए बेटा, जो आपके चैट बॉक्स में मैंने अभी डाला हुआ है, there is a triangular prism, side of base 30 mm, axis 50 mm long, 55 mm long. ठीक है जी, triangular prism आपके गिवन है, 30 mm बेस है उसका, साइड उसकी बेस की, and axis 55 mm long है, lies on one of its rectangular faces
जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सॉरी रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपका, these are called the rectangular faces. जैसे these are the rectangular faces. This is the rectangular face. So the triangular prism आपके पास, then it will be having the rectangular faces. ये वहीं से बना हुआ बेटा, इसकी डेफिनेशन से बना हुआ है। रेक्टेंगुलर फेस हमने बताया था कि इसमें जो देयर आर टू बेसिस व्हिच आर जॉइंट बाय द रेक्टेंगल, तो इनको रेक्टेंगल्स को इसी रेक्टेंगुलर फेस के ऊपर इट इन दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म इट इज लाइन लाइक दिस सच दैट इन HP with its axis parallel to the VP. जो इसकी axis है, ये वाली axis, this axis is parallel to the VP. ठीक है? So how to draw this question? समझ में लगा कि नहीं बेटा? ये पोजीशन किसी को नहीं समझ में लगी तो बताइए मेरे को। एनी स्टूडेंट पहले ये पोजीशन बताइए मेरे को, नहीं समझ में लगी तो आपको पोजीशन इसकी। मैं दोबारा फिर इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। ट्रायंगुलर प्रिज्म है आपके पास, इट इज लाइंग ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस, तो इस फेस के ऊपर ये ट्राई कर रहा है लाइक दिस, सच दैट इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू द VP। इसकी जो एक्सिस है, दिस एक्सिस पैरेलल टू द VP, ये VP के सामने जो है, VP के सामने ये ऐसे लाइन करता है एंड रेस्टिंग ऑन द HP। तो इसकी एक्सिस जो है HP के भी पैरेलल होगी और VP के भी पैरेलल होगी। एंड यू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। हाँ जी, फ्रंट व्यू टॉप व्यू सीधे ड्रॉ हो जाएगी कि ड्रॉ करना पड़ेगा हमारे को? एनी स्टूडेंट प्लीज टेल मी। इस क्वेश्चन में इफ यू सी फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट में आपको एक रेक्टेंगल सिर्फ दिखेगी। टॉप व्यू से देखोगे, टॉप व्यू में भी एक रेक्टेंगल दिखेगी आपको, जिसमें एक आपका एज आएगा। तो कैन वी ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू डायरेक्टली? बेटा सुनाई दे रहा है आपको कि नहीं? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आपकी तरफ से। कैमरा ब्लर्ड। तो इस केस में बेटा सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द साइड व्यू। हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से इसका जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल हमारे को यहाँ से विजिबल रहेगा। आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ द टॉप व्यू। तो हम स्टार्टिंग में पहले साइड व्यू इसका ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू आपको ध्यान होगा कैसे किया था, एक भी किया था क्वेश्चन में। एक रेफरेंस लाइन आपने ड्रॉ की XY, देन यू ड्रॉ द एक आपने प्रोफाइल प्लेन आपने ड्रॉ किया YZ। इसके ऊपर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या डायमेंशंस है? साइड इज 30 mm और इसकी एक्सिस कितनी mm लॉन्ग की आपको? 55 mm लॉन्ग। तो यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ, ठीक है? पॉइंट्स आर E डैश, सॉरी E डबल डैश, E डबल डैश, या
and this one C double. After that, you connect all these points in the front views and the top views. कैसे करते थे हम? है आपके ध्यान पे 45 डिग्री पे आप अपने ड्राफ्टर को रोटेट करोगे और ये वाली जो लाइन आपने मार्क करनी है ये जो लाइन है इस लाइन शुड बी एट 45 वाली लाइन आपने ड्रॉ करनी है at 45. के बाद आपने टॉप व्यू पे ले लेते कहीं से भी आप इसकी और इनका पॉइंट्स की ये लेंथ कितनी दी हुई है आपको एक्सेस की इट इज 55 mm 55 mm यहाँ से स्टार्ट करके आप इसको 55 mm इसको नाउ दिस पॉइंट्स ए से ही हमने किया अभी ए से भी देखते हैं ये वाली लाइन इज ऑफ ए तो ये वाला पॉइंट आपका किया गया दिस इज ऑफ बी दिस इज बी दिस इज सी ऐसे ये वाला पॉइंट्स दिस पॉइंट्स आर ए बी the top view is the front view this point is a dash this point is a dash this point is b dash c dash this point is b dash अब इसकी यहाँ से बेटा अगर आप इसको कंटिन्यू थिन लाइन से छोड़ दोगे तो ये कुछ भी किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये क्या बना रखा है ठीक है सिर्फ मेरे को समझ लग जाएगा कि ठीक है इसने बना रखा है ये मेरे को क्वेश्चन को पता था अदरवाइज क्या करना है आपने इसको कंटिन्यू थिक लाइन से आपने सारा जो फाइनल व्यूज है वो आपने मार्क करने हैं ये आपका हो गया के बाद वो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी अब इसकी डायमेंशनिंग करनी है आपने डायमेंशनिंग या तो यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग करना इट इज 30 mm यहाँ पे इसकी हाइट बतानी है जो लेंथ है so this completes this question हाँ जी किसी स्टूडेंट को नहीं क्लियर होगा बेटा ये क्वेश्चन any student having any doubt regarding this question क्लियर हो गया थी should we move to the next question
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। A right regular pentagonal pyramid edge of base 25 mm, height 50 mm, has its base parallel to the VP with one of its base edges in HP. Draw the projections. Irregular pentagonal pyramid, edge of base 25 mm, height 50 mm, has its base parallel to the BP. कौन सा पेंटागन पिरामिड? तो हाँ जी बेटा जी, पिक ले लिया ना इनके क्वेश्चंस के दोनों के। हाँ जी, क्वेश्चन आपका राइट रेगुलर pentagonal pyramid, edge of base 25 mm, height 50 mm, has its base parallel to the VP. पिरामिड है पहले तो आपको गिवन थी, ये वाला जो इसका बेस है, इस बेस इज पैरेलल टू द VP। ये आपका VP है, VP के इस टाइप से ये पैरेलल है, ठीक है जी। पिरामिड है जी, पिरामिड कैसे है? ये आपके ट्रायंगुलर फ्लेक्सिबल नाम से पिरामिड समझते हो ना? तो ये वाला जो बेस है, दिस बेस इज पैरेलल टू द VP। ये वाला जो बेस है, दिस बेस इज पैरेलल टू द VP। इस टाइप से है बेस। तो फ्रंट से जो आपको एपेक्स जो है उसका वर्टेक्स है, दैट विल बी विजिबल टू यू। और ये वाली जो एजेस हैं, ये एजेस भी सारी आपको विजिबल रहेगी, ठीक है। एंड विद वन ऑफ इट्स बेस एजेस इन HP। और ये वाला जो एक बेस एज है, बेस एज 5 बेस एज। तो आउट ऑफ दिस 5 बेस एजेस, one base edge is lying in the HP. This is lying on the HP. It is just like this. ये आपका इस टाइप से, ये पीछे VP है आपका, VP के ऊपर ये VP के पैरेलल है और HP के ऊपर ये लाइन कर रहा है इस टाइप, ठीक है। फ्रंट व्यू में क्या आएगा आपके पास? फ्रंट व्यू में ये विल बी पेंटागन, draw the reference line XY. This completes our pentagon. Then इसका बेस बना दिया, पॉइंट्स नोट कर दीजिए। E डैश मार्क कर दीजिए, E डैश, B डैश, C डैश, D डैश एंड E डैश। तो ये वाला इसका बेस आ गया। बेस इज पॉइंट्स आ गई A, B, C, D, E।
ये एक्सिस जो है आपकी एक्सिस विल बी along this line. हाइट कितनी गिवन आपको इसमें, दैट इज 50 mm. 50 mm आपको यहाँ से कट कर दोगे. अब इसमें बेटा एक काम आपको और करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लोकेट इट्स सेंट्रॉइड. पेंटागन जो है, पेंटागन का सेंट्रॉइड आपने फाइंड आउट करना है. कर लोगे सेंट्रॉइड फाइंड आउट? कोई भी आप जो दो एंगल बाइसेक्टर आप मार्क कर दीजिए. फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मार्क कर दीजिए. इस एंगल का बाइसेक्टर मार्क कर दीजिए. ये भी आपको ज्वाइन करना है. तो ये वाला जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हम मार्क करते हैं O डैश. ये इसमें आ गया आपका टॉपिक में. अब जो ये वाले जो लाइंस हैं, O डैश, A डैश, O डैश, B डैश, O डैश, C डैश, O डैश, D डैश एंड O डैश, E डैश. तो बेसिकली दीस आर द स्लैंट एजेस. ये आपका जो पिरामिड हमने बनाया है, पिरामिड की ये वाले जो हैं, दीस आर द स्लैंट एजेस. उसको हम क्या बोलेंगे? O इज द वर्टेक्स. तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? O A. तो ये स्लैंट एज कौन सी होगी इसकी? O A. ऐसे ही द सेम मैनर O B, O C, O D एंड O. तो ये वाली जो लाइन आती है, इस लाइन की शुड बी कंटीन्यूअस थिक लाइन. O A, O B, सॉरी O dash A dash, O dash B dash, O dash C dash, O dash D dash and O dash E dash. All these lines will be continuous thick lines. और ये भी आपकी आउटर एजेस जो है, ये जो आपकी कंटीन्यूअस थिक लाइन आ रही है. Now in the top view में these points have been marked A, B, C, D, E. After that, O is marked. Now next we have to mark the slant edges. O E O C ये तो आपके हो गए. O D भी आपका हो गया. O E को आपने O A को ज्वाइन करोगे, O B को आप ज्वाइन करोगे. ठीक है. और इनको आप कंटिन्यूअस एक लाइन से so this completes the question of dimensional classification. आपको कितने कितने का 25. O A एंड O B. हाँ जी बेटा O, ये बेसिकली बेटा ये देखिए यहाँ से, हाँ वेरी गुड. ये पिरामिड है. थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसमें. ये पिरामिड है. पिरामिड की these are the कितनी स्लैंट एजेस होंगी इसकी? 5. O A, O B, O C, O D and O E. 5 की 5 स्लैंट एजेस. आप यहाँ से देख लो, फ्रंट से ऐसे देख लो. फ्रंट पे आगे आप थोड़ा इमेजिन करोगे आप इसको, तो ऑल द एजेस विल बी विजिबल.
फ्रंट से बेटा सारी आपको विजिबल रहेगी। टॉप व्यू में, एक मिनट, टॉप व्यू में हाँ जी बेटा, अपना इसमें डॉटेड वाला आपको सिस्टम मैं बताता हूँ। डॉटेड वाली ये आपकी बेसिकली डॉटेड आएंगी, ओ ए एंड ओ बी। ये अभी बता रहा हूँ आपको डॉटेड कैसे आनी है। ठीक है, ये क्या कंसेप्ट है बेटा। अब बेसिकली दिस एजेस विल बी द हिडन एजेस, ओ ए, ये आपकी इस टाइप से डॉटेड हमने मार्क होती है। इसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, कैसे आप डॉटेड कैसे चेक करनी है। डॉटेड चेक करने के लिए यू आर सीइंग दिस पिक्चर फ्रॉम द टॉप। यहां से देख लो पिक्चर, ध्यान से सुनना मेरी ये बात है। दिस इज योर फिगर। इसी फिगर को आपको यहाँ से ऊपर से टॉप से देखना। तो ये वाली जो लाइन आ गई, दिस इज द लाइन ऑफ एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एक्सिस। इफ यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप, एक्सिस से जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, वो भी पॉइंट्स विल बी डॉटेड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्रॉ द एक्सिस। जो पॉइंट्स आपको फ्रंट व्यू में नजर आ रहे हैं, इन द, जैसे आप टॉप से देखोगे द फ्रंट व्यू कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ए और बी, ए डैश और बी डैश। नाउ दीस पॉइंट्स बिलो द एक्सिस जो आ रहे हैं, ओके, बिलो द एक्सिस वाले, so all the points will be below the axis will be hidden। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं इस एक्सिस से बिलो, these are points are A and B। इट मींस O और A को ज्वाइन करने वाली लाइन, O और B को ज्वाइन करने वाली लाइन, अपने आप सारी ये लाइन आपकी डॉटेड हो जाएगी। Below the axis will be hidden, below the axis points will be hidden। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बिलो द एक्सिस हमने बोल दिया कि बिलो द एक्सिस पॉइंट्स विल बी हिडन। कौन से पॉइंट्स हिडन नहीं होंगे बेचारा, आउटर बाउंड्रीज या सेक्टर बेचारा आउटर बाउंड्रीज। नाउ दीस पॉइंट्स ओ ए एंड ओ बी, ये आपके डॉटेड लाइनों से आपको मार्क करना है। बेटा बेस आपका, बेस हम किस लिए दिखा रहे हैं, बेस आपका ये आपका, दिस इज द आउटर एज, दिस इज द आउटर एज, दिस इज द आउटर बाउंड्री, दिस इज द पार्ट ऑफ द आउटर बाउंड्री। ये तो हमारे को कंटिन्यू थीक लाइन से मार्क करने का। उसके बाद जो पॉइंट्स आपके हिडन पॉइंट्स को कैसे चेक करना है, उसके लिए ये वाला कांसेप्ट बेटा आपने यूज करना है। जो इस एक्सिस से नीचे वाले, ऊपर से आप देख रहे हो, इस एक्सिस से जो नीचे वाले पॉइंट्स आएंगे, बिलो पॉइंट्स कौन से आ गए, ये तो आपके एक्सिस के ऊपर ही आ गए, ये और सी। तो इसके बिलो पॉइंट्स कौन से आ गए, ए एंड बी। तो ए एंड बी पॉइंट्स में बी हिडन, मे भी हिडन में किसके कह रहा हूँ, अगर ये आउटर बाउंड्री में आएंगे तो हमारे को ये डार्क करने हैं, कंटिन्यू थिक करने हैं, these edges will be visible, otherwise these should be marked with the, marked as the hidden edges and shown with the dotted। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी। ओ ए एंड ओ बी,
बेटा वो कौन सी कह रहे हो आप? इन द फ्रंट व्यू की बात कर रहे हो क्या आप? फ्रंट व्यू में बेटा आपको सारे एजेस आपको विजिबल रहेंगे, वो आप फ्रंट से देख रहे हो। ये आपके जो एजेस हैं इस टाइप से आपके एजेस आएंगे, यहाँ से एज जाएगा, यहाँ से एज जाएगा, यहाँ से एज जाएगा। ये बेसिकली यहाँ से ऐसे इमर्ज होके उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनेट खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है यहाँ पे पॉइंट्स। तो ऑल एजेस विल बी विजिबल टू यू। ठीक है, वो शेप आपको इसी टाइप की दिखेगी अगर आप फ्रंट से देखें। अगर यही वाला आपका बेस है सेम, आप इसको बैक व्यू से देखते हो तो बैक व्यू में कोई भी आपको विजिबल नहीं रहेगा एजेस। आप फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से सारे आपको विजिबल रहेंगे। O A O B O C and O D and O P all the edges। और ये वाले एजेस सिर्फ आपके ये डॉटेड आएंगे। अभी ये डॉटेड वाला कॉन्सेप्ट बताइए, किसको नहीं समझ में आया होगा? तो अभी फिर मैं इतना ही करवा रहा हूँ, इसके बाद आपके देर आर 3 क्वेश्चन मोर, 3 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके इसमें अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें आपके जो है उसमें एक्सिस आपकी इंक्लाइंड हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन आप ड्रॉ करना, जैसे हम प्लेन में करते थे, प्लेन में 2 पार्ट्स में ड्रॉ करते थे, ऐसे आपके सॉलिड्स में भी 2 पार्ट में वो क्वेश्चन आपके ड्रॉ होंगे। अभी तक सिर्फ ये वाला, इसमें आपको किसी ने कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपको ये कॉन्सेप्ट हिडन एजेस वाला नहीं समझ में आया, हिडन एजेस बाकी आपका सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन में हिडन एजेस वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, इसमें यूज नहीं होगा, इसमें नहीं यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में यही यूज है इसका। ये थर्ड क्वेश्चन में आपका आ गया, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये 6 क्वेश्चन पे आपका वक्त पे यूज होगा। हाँ जी, साइड व्यू बताइए बेटा, साइड व्यू क्या करें? मनीष, साइड व्यू बताइए बेटा, क्या कहते हैं साइड व्यू का? इज देयर एनी डाउट? साइड व्यू नहीं ड्रॉ करना बेटा, साइड व्यू